Yes, welcome students. In today's session we are taking the coordination compounds. See, question number 1. The number of d electrons in a chromium of CrH2O6 3+. So first of all students, we will write the electronic configuration of chromium. That is, chromium has atomic number 24 and electronic configuration is argon 18, 3d5, and 4s1, right? So this is the electronic configuration of chromium. Now in CrH2O6 3+, chromium has oxidation state 3+, means +3. So +3 is obtained by releasing 3 electrons, so 1, 2 and 3. So how many d electrons are there? Answer is 3. Okay, so this 3 is the correct answer. Okay, next, maximum number of unpaired electrons which are present in which ion? Students, for that first of all we are taking the electronic configuration, see, and before that atomic number. Okay, and now for calculation of unpaired electron there is one shortcut, और वो shortcut क्या है मैंने पहले आपको समझा दिया है, चलो फिर से देख लेते हैं. It is, this shortcut is applicable for the elements, for the ions of elements having atomic number 21 to 29 only. मतलब जिंक के लिए अप्लाइड नहीं है और किसी एटम के लिए अप्लाइड नहीं है, सिर्फ आयन के लिए ही अप्लाइड है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल do the total sum of atomic number, that is 2 plus 2, that is 4, और charge is subtracted. Again एटॉमिक नंबर के डिजिट का सम करो और चार्ज सब्सट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आया उसको 5 बॉक्सेस में सेट करो. तो अगर 1 है तो 1 अनपेड, 2 है तो 2 अनपेड, 3 देन 3 अनपेड, 4 देन 4 अनपेड, 5 देन 5 अनपेड, बट 6 देन 4 अनपेड, 7 देन 3 अनपेड, 8 देन 2 अनपेड, 9 देन 1 अनपेड. ओके, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो 2 plus 1 एंड जो चार्ज है वो माइनस करो 0. सो हियर 2 अनपेड, हियर 0 अनपेड. नाउ Cr3+, chromium has atomic number 24, so 2 plus 4 and minus 3, so 2 plus 4 is 6, 6 minus 3 is 3, so here 3 unpaired electrons. And Mn2+, manganese 25, so 2 plus 5 minus 2, that will be 5, so 5 unpaired. So the maximum number of unpaired electrons present in Mn2+. और अब याद रखेंगे Cr1+, Mn2+ and Fe3+, all have maximum 5 unpaired electron, and chromium metal has 6 unpaired electrons. Okay, next, the compound having blue color. चलो ब्लू कलर किसका होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना याद होगा कि कॉपर Cu2+ has a blue color. Okay, so there are two options. First is CuSO4, another is CuSO4 dot 5H2O. This 5H2O is a water of crystallization, and these 5 molecules of H2O will act as, वो एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो ये जो CuSO4 एनहाइड्रस CuSO4 है, इट्स अ वाइट इन कलर. ओके, नेक्स्ट, colored complex absorb radiation in visible region. The reason for it is, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स वो हमें कब दिखेंगे? तो विजिबल रीजियन, हमारी जो आई है वो सिर्फ विजिबल रीजियन
उसकी रेडिएशन से उसके कलर ही वो आइडेंटिफाई कर सकती है। ओके तो पहले से हम बोल रहे हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्स मीन्स हमें तो कलर्ड दिख ही रहे हैं, तो वो क्यों दिखेंगे? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन अ विजिबल रीजियन। नेक्स्ट, Ti3+ is purple but Ti4+ is colorless. See, Ti3+, 22 atomic number and here 22. So how many unpaired electrons are present in Ti3+? Answer is 1 unpaired electron, right? And here 0 unpaired electron. So whenever d electrons are present, at that time dd transition is occurred, and due to this dd transition any ion has a particular color. So Ti3+ is a purple, right? But Ti4+ is colorless because there is no any single d electron present in the ion. So Ti3+ has d1 electronic configuration and Ti4+ has d0 electronic configuration. Okay, and our answer is 1 because Ti3+ 1. So whenever this 1 electron is present, so dd transition is occurred. dd transition तो शायद आपको पता ही होगा, d ऑर्बिटल्स और ऊपर वाली d ऑर्बिटल्स, तो d ऑर्बिटल्स का ही स्प्लिटिंग हो जाता है। ये जो दो है वो होंगे dz² एंड dx²-y², और ये जो ऊपर तीन टाइप्स के होंगे वो होंगे dxy, dyz, dzx। तो इन दोनों के बीच में ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजियन, it will transit from lower to upper and upper to lower, and due to this transition we are getting a particular color. Okay, next, the magnetic moment of Fe2+ in Bohr magneton. Magnetic moment का formula है students, mu equals √n into n+2. Fe2+ atomic number 26, डिजिट का सम करो, 2 + 6 8, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो 6, and 6 are set in a 5 boxes. So at that time 4 unpaired electrons will be present. Okay, so 4 unpaired, then put the value of 4 in this equation. So 4 + 2 6, 6 4 are 24, square root of 24 is 4.90. ओके वही दिया है, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? अब स्टूडेंट्स जिसकी भी साइज ज्यादा होगी, आई थिंक आंसर यहाँ पे प्रॉपर दिया नहीं है। ओके जिसकी साइज बड़ी होगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लो किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो जनरली एज वी गो डाउन द ग्रुप, हाँ तो स्कैंडियम वाला Sc3+ और Cr3+। ओके ये नंबर 4 आंसर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन इसके हिसाब से दिया नहीं है। ओके ओके यहाँ पे जो आंसर दिया है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से शायद दिया होगा अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ U2+ एक्ट एज, अब U2+ क्या है? क्यों भी जल्दी जल्दी आ गया। तो U2+ undergoes oxidation to get the stable half-filled electronic configuration. That's why it's a reducing agent. क्यों? क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन उसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, पोटाशियम फेरोसाइनाइड वो किसका एग्जाम्पल है? तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलो डबल सॉल्ट क्या है कि डबल सॉल्ट में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यहाँ पे आपको 2 ही आयंस मिलते हैं, पता है ना, K+ एंड FeCN6 4-। ओके नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, तो यहां पे उसका आंसर है नंबर 3। ओके 3 नंबर। द रीजन फॉर इट इज, फर्स्ट इज अ कार्नेलाइट, इट्स अ डबल सॉल्ट, इसमें हर एक कंपोनेंट
आयोनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी इट्स एन एलम, ये भी फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट फॉर्म इसका FAS है। सो 1, 2 and 4 ऑल आर डबल सॉल्ट। यस, ये मोर सॉल्ट है, ये एलम है और ये कार्नलाइट। ओके, सो दिस COCl3.6NH3 एक्चुअल फॉर्मूला इसका ऐसा है, CONH3 6Cl3, इट इज complex compound. Which is a double salt? Carnallite, potassium ferrocyanide, potassium ferricyanide and Nessler's reagent. Carnallite. Carnallite. Which forms equal number of moles of ions in 1 mole it is dissolved in excess of water. So equal number of moles of ions. See, ferrous ammonium sulfate and carnallite, carnallite and alum, alum and potassium ferrocyanide, potassium ferrocyanide and potassium ferrocyanide. तो चलो सबका फॉर्मूला लिखते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 twice SO4 .H2, उसकी जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे आयंस कितने होंगे? Fe NH4 2 and 1 3, 3 and 1 4, टोटल 4 टाइप्स ऑफ आयंस। और कार्नलाइट KCl MgCl2, इसमें भी 1 2 and 3। ओके, कार्नलाइट एंड एलम, एलम का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, तो यहाँ पे 2 and 2 4, 4 and 5। और एलम और कार्नलाइट में भी हमने दिखाया 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट में 4 और यहाँ पे 3, एलम में अगेन 5 और पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 5 एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 एंड फेरिसाइनाइड देन K3FeCN6। तो इसमें 5 आयंस और इसमें 4 आयंस। ओके, आंसर उसके हिसाब से नहीं दिया है, जस्ट मिनट, आई थिंक इट्स रॉन्ग। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा जो देखो इसमें ऐसा होगा, Fe फेरस एमोनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 twice SO4 .H2। ओके, तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने होंगे? 1 and 2, then 2 4 and then 1 5। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस दिया है आपको, when 1 mole of salt is dissolved, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 5। कार्नेलाइट में KCl MgCl2.6H2, तो उसमें भी देखो 1 2 3 and 2 5 आयंस। कार्नेलाइट में अगेन 5। एलम का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 2 and 1 3, 3 and 3 6 and 2 8। ओके, और तो 5 and 8 देखो। चलो फर्स्ट में हमारा आंसर तो आ गया है, एलम अगेन 8 और पोटाशियम फेरोसाइनाइड उसका फॉर्मूला है K4FeCN6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 5, नॉट सिमिलर। फेरोसाइनाइड अगेन 5 और फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला है K3FeCN6। ओके, सो हियर टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 4। सो इन फर्स्ट ऑप्शन the number of moles of ions are same. Next, which answers of all the tests of constituent ions? तो ध्यान से देखना। More salt, it is ferrous ammonium sulfate. Nessler's reagent K2HgI4, lithium aluminum hydride LiAlH4 and Prussian blue colored complex, it is Fe4FeCN6 thrice, this one is K2HgI4। ओके, तो देखो
except first, all are the complex substances. More salt, ferrous ammonium sulfate, FeSO4, Al2, NH4 twice SO4, 6H2. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हर एक कंपोनेंट, ये इट्स अ डबल सॉल्ट एंड रिमेनिंग आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हर एक आयन फॉर्म नहीं होता है. अगेन, कॉम्प्लेक्स में हर एक आयन आयोनाइज नहीं होता है, मतलब हर एक पार्टिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देंगे, मतलब I माइनस की नहीं मिलेगी, Ag2 की, हाँ K प्लस की मिलेगी. तो वही दिया है, विच आंसर्स ऑल द टेस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दैट इज अवर डबल सॉल्ट. दिस वन इज अवर आंसर एंड रिमेनिंग आर द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. तो यहाँ पे Fe3 प्लस की मिलेगी लेकिन अंदर Fe2 प्लस की टेस्ट आपको नहीं मिलेगी, Cn माइनस की टेस्ट नहीं मिलेगी. सिमिलरली यहाँ पे Al3 प्लस की टेस्ट नहीं मिलेगी, H1 माइनस है, हाइड्राइड आयन है तो उसकी टेस्ट नहीं मिलेगी, लिथियम की टेस्ट मिलेगी आपको. ओके, दैट्स इट. Next, in which of the following transition metal complexes does the metal exhibit zero oxidation state? तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे होगी? तो देखो, फर्स्ट में होगी X 6 अमोनिया 0 -3 इक्वल्स 0, टोटल इज X इक्वल्स +3. H2O 0 SO4 -2, so X -2 total is 0, X equals +2. NiHCO4, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, दैट इज अवर आंसर. और लास्ट में अगेन +3 बिकॉज H2O इज न्यूट्रल लिगेंड. ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. फेरिसाइनाइड इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इट्स K3FeCN6 और फेरोसाइनाइड हो तो K4FeCN6. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3 पोटेशियम और ब्रैकेट पूरा 1, तो टोटल आंसर इज 4. ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दिस. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, तो आयंस उसमें कुछ होंगे ही नहीं. द रीजन फॉर इट इज 1 इज अ मॉलिक्यूल एंड इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एन आयन. तो इसमें से कोई आयन, हाँ सॉल्यूट पार्टिकल इज 1, ओके, विथ 1 मॉलिक्यूल. ओके, एक मॉलिक्यूल अगर डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूट पार्टिकल 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इसमें 0 होंगे. ओके, next, the number of ions formed aqueous solution by compound this. तो चलो इसमें bracket is considered as whole ion and 1 Cl. Total answer is 2. Next, the following doesn't give a precipitate either AgNO3 or BaCl2. Simple. Number 2. The reason for it is there is no any single Cl minus or SO4 2 ion outside. देखो यहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. ओके, सो प्रेसिपिटेट्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड. Which of the following has the highest molar conductivity? And this molar conductivity is directly proportional to the number of moles of ions. तो देख लो अब, हाईएस्ट कंडक्टिविटी मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस किसमें मिलेंगे? इसमें 0 आयंस, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, 3 Cl and 1 bracket. Okay, so number 1 is the correct answer. Ethylene diamine is a complex, is an example of which type of ligand? इथिलीन डायमाइन, उसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, CH2 और NH2, इथेन 1,2 diamine, and here there are 2 coordination sites, so it's a bidentate. Simple.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स? जस्ट मीन स्टूडेंट्स स्किप करेंगे ये क्वेश्चन क्योंकि ऑप्शन उसके हिसाब से दिया नहीं है, देख लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl obtained when excess AgNO3 is added to 1 mole of this। आंसर क्या होगा बोलो? ब्रैकेट के बाहर कितने Cl? 1। ओके, तो यहाँ पे 1 AgCl आपको मिलेंगे, सिंपल। Aqueous solution of COH2O5SO4Cl gives precipitate with। अब देखो बाहर Cl है तो फिर वो AgNO3 के साथ देगा। अगर बाहर SO4 होता तो वो BaCl2 के साथ BaSO4 के PPTs देते। ओके, नेक्स्ट। The following solutions requires 3 moles of AgNO3 for the complex precipitation of all the chloride ions present in it। 3 moles of AgNO3 for the precipitation। तो ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए? 3Cl होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट में 1 लीटर दिया है, 1 मोलर दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने? चलो, मोलारिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1, तो टोटल 1 मोल है और 1 मोल में कितने Cl? 3। ओके, सेकेंड में देख लो, 3 लीटर्स दिया है और 1 मोलर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 3। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 और 1 मोल में 1 Cl, तो 3 मोल्स में 3 Cl, तो इसमें भी आपको 3 मोल्स ऑफ AgNO3 मिलेगा। थर्ड में 1 लीटर 1.5, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.5 और इस 1 मोल में 2 Cl, तो 1.5 मोल्स में 1.5 2 3। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स इजी, लास्ट ऑप्शन आपको दे दिया है ऑल ऑफ अबव। जनरल इक्वेशन कैसे पूछेंगे? तो ये 4 नंबर देंगे ही नहीं और आपको 4 ऑप्शंस देंगे, only in 1, only 2 and 3, only 3 and all 1 2 and 3। और यहाँ पे तो तीनों दे दिए हैं, कुछ आपको नहीं भी देंगे, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है उस टाइम पे। ओके, रिमेंबर दिस। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस वन, तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे है? तो आपको याद होगा ब्रैकेट और बाहर हम जो भी लिखते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पता होगा ये तो ब्रैकेट और बाहर के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इसमें तो चलो आयोनिक बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही। सेकेंड है यहाँ पे कोवेलेंट। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे होगा? बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद हो तो। ओके, थर्ड इज ionic covalent, fourth is ionic covalent and coordinate covalent। अब coordinate covalent that is dative bond होगा between metal ion and ligand। So here all types of bonds are present। Next, now चलो coordination number and ligands। So ligand in a metal carbonyl complex। अब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होगा? सिंपल, इट इज नंबर 2, कार्बन मोनोक्साइड। आयोनाइजेबल वैलेंसी ऑफ इन NiCO4, आयोनाइजेबल वैलेंसी इसकी कितनी होगी? आंसर इज 0, सिंपल, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज 0। According to Werner's theory of valency transition metals possesses only one type of valency। Answer is 2 types of valency, primary and secondary। ओके, तो अब देखो वर्नर्स थ्योरी में ऐसा दिया है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर टोटल 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में इसका सेकंड पार्ट हम ले लेंगे। ओके देन, गुड बाय।